very good evening to all of you. And as you all know, we were discussing chapter microorganisms, friend and foe, है ना? So just we will be continuing it, है ना? So as you all know that we were discussing the usefulness of the microorganism, in which we discussed that how the microorganism is useful in making the curd, है ना? And in making the cakes, in making the breads and all, है ना? So after that we will be discussing about the use of microorganisms in the production of alcohol and acetic acid, that is the vinegar, है ना? So we will be discussing the same. Okay, we will be discussing that how the microorganisms are useful in the production of alcohol and acetic acid. Understood? Okay, so let's start now. So we know that the microorganisms are used for the large scale production of alcohol and vinegar. Yeast is the microorganism which is used for the large scale production of alcohol. This is, you must know, this is for your 1 marks question, and this is your 1 marks question, that yeast, which organism is used, or which microorganism is used? So yeast is the microorganism which is used for the large scale production of alcohol. Okay, this alcohol is then used for making wine, beer and whiskey and industrial spirit also. Okay, so this alcohol which is being made with the help of yeast, that alcohol is used for making beers, wines, whiskies and industrial spirits also. Okay. So now we can see, indirectly actually we can say that yeast is actually helpful in making beer, wine, whiskey, है ना? क्योंकि the alcohol which is being made with the yeast, that alcohol is only used for making beer, wine, whiskey, ना? So indirectly or directly we can say that yes, yeast is useful for making your beer, wine, spirit, industrial spirits and all, है ना? Okay. Yeast is capable of converting sugar into alcohol and carbon dioxide. Is it so? The sugar for making alcohol comes from the substances, है ना? अब ये तो है बात कि yeast is capable of converting sugar. ये जो sugar है ना, तो एक liquid में एक solution कोई भी होता है जिसमें sugar होता है, तो that sugar is generally converted into alcohol and carbon dioxide. Okay, yeast is responsible. Yeast can do this. Yeast can convert the sugar into carbon dioxide and alcohol. Okay. अब द क्वेश्चन इज कि अल्कोहल बनाने के लिए जो शुगर का ज़रूरत होता है, जो शुगर यूज़ किया जाता है, वो शुगर हमको मिलता है कहाँ से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट शुगर? ओके, सो द शुगर फॉर मेकिंग अल्कोहल्स कम फ्रॉम द सब्सटेंसेज एज केन जूस एंड फ्रूट जूसेस, और फ्रॉम द सब्सटेंसेज सच एज बार्ली, मेज, राइस, लाइक दिस. मीन्स द सब्सटेंसेज विच कंटेन स्टार्च. ओके, द सब्सटेंसेज विच contains starch, because the starch will be converted into sugar, and that sugar will be converted into alcohol and carbon dioxide by the yeast. Okay. So there is one process, actually I have discussed this in the last video, that the process of fermentation, है ना? I have said you all that fermentation process, है ना? So fermentation, what is this process? Then if anyone will ask you that what is fermentation, you should write in copy. Okay, this you should write this in your respective copies, है ना? जो भी notes तुम लोग बना रहे हो अभी तक, तो उसमें ये सब ऐड करो, है ना? What is fermentation, है ना? उसके बाद तुम्हारा ऐड करो तुम लोग उसमें कि yeast जो है वो क्या कर सकता है. तो yeast can convert the sugar into alcohol and carbon dioxide, ये एक पॉइंट ऐड करो. उसके बाद तुम लोग ऐड करो कि ये जो शुगर मिलता है, ये शुगर कहाँ से मिलता है, व्हाट इज़ द सोर्स. तो शुगर हमको जनरली केन शुगर से मिलता है, फ्रूट जूसेस से मिलता है, या फिर व्हीट, बार्ली, मेज से मिलता है ना? तो ये सब तुम लोग ऐड करो. ये सब पॉइंट है, ये सब नोट्स. देखो नोट्स क्यों बनाया जाता है? नोट्स इसलिए बनाया जाता है कि जब भी हम लोग का एग्जाम है ना, तो अब तो तुम लोग का जो है ऐसा नहीं है ना कि एक चैप्टर, दो चैप्टर है ना. हाफ ईयरली फाइनल होता है, हाफ ईयरली में 8-9 चैप्टर्स रहते हैं, फाइनल में पूरे 16-17 चैप्टर्स रहते हैं. तो एक दिन, हार्डली 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन का गैप मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है तुम लोग, है ना? तो अब एक दिन में, 2 दिन में जो है 16-17 चैप्टर, 16-17 चैप्टर्स को बुक पढ़ के रिवाइज करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें तुमको अपना क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करना रहता है ना.
फिर थोड़ा सा चैप्टर भी रिवाइज करना रहता है, तो इसलिए नोट्स बनाया जाता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर स्टडिंग द चैप्टर, व्हेन वी आर रीडिंग द चैप्टर, तभी हमने जो है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वहाँ से खींच के निकाल के अपने कॉपी में रख लिए हैं कि जब भी मुझे रिवीजन करना हो तो मैं फटाफट ये सब पॉइंट्स देखूंगा और पूरा जो चैप्टर है एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे आँख के सामने। इसीलिए नोट्स बनाया जाता है, क्योंकि नोट्स बनाना मतलब क्या, नोट्स लिखना है, तो लिखने में देखो टाइम लगता है, तो इट टेक्स टाइम। तो तुम वहाँ पे टाइम दे रहे हो, ऑब्वियसली तुम इनपुट दे रहे हो, तो वहाँ से आउटपुट आएगा। सही से इनपुट दो तो सही से आउटपुट मिलेगा। सही से नोट्स को बनाओ, तब तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे एग्जाम टाइम में, तो वो तुमको मदद करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तुम ऐसे जाते नोट्स बना लिए, कुछ पॉइंट लिखे हो, कुछ पॉइंट छोड़ दिए हो, है ना, मन किया तो लिखे, मन किया तो छोड़ दिए, है ना, और फिर तुम बोलोगे नहीं सर ये जो नोट्स है, अब तो बोले थे नोट्स पढ़ के जाना सब हो जाएगा, लेकिन देखिए सर ये हम छोड़ के आ गए, याद ही नहीं आया, नोट्स में लिखा ही नहीं था, तब सर का क्या गलती है ना। तो व्हाट इज़ माई फॉल्ट, किसी का भी, एनीवन टीचर। तो जब कोई काम कर रहे हो तो सही से करो, है ना, नोट्स बना रहे हो सही से नोट्स बनाओ, ताकि वो रियली तुमको हेल्प करे, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूँ तुमको मिलता है, तो वीडियो पॉज प्ले करने का ऑप्शन है भाई, फॉरवर्ड रिवाइंड करने का ऑप्शन है, सब ऑप्शन तुम लोगों के पास है, कर लो ना, है ना, कर लो वो, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो कोई, मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया, तुम लोग का काम है मेरे बात को सुन के उस पर एक्शन करना, वो तुम लोग करोगे, मुझे पूरा उम्मीद है तुम लोगों से, है ना। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, है ना, लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, by the action of yeast is called fermentation, is called fermentation. Okay, ठीक है ना। ओके चलो, अच्छा, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, और क्या लिखा गया था कि एसिटिक एसिड, तो अल्कोहल में तो ईस्ट काम करता है, ईस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल इन कार्बन डाइऑक्साइड में, वहाँ से हमको अल्कोहल मिलता है, वो अल्कोहल इज यूज्ड इन मेकिंग बियर, वाइन, विस्की, है ना, स्पिरिट्स एंड ऑल। अब क्वेश्चन है सर सेकंड पॉइंट, है ना, सर विनेगर कैसे बनता है सर, ये बताइए, उसमें भी क्या ईस्ट है या फिर कुछ और है ना। तो लिख लो कि बैक्टीरिया से बनता है विनेगर, है ना, बैक्टीरिया कैन टर्न द अल्कोहल इनटू विनेगर, बैक्टीरिया कैन टर्न द अल्कोहल, ये जो अल्कोहल बना ईस्ट से, उस अल्कोहल पे अगर हम लोग उसके अंदर अगर हम लोग बैक्टीरिया को डाल देते हैं, तो बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया द बैक्टीरिया विल कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू विनेगर। ये तुम लोग लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग लिख लो, एक और पॉइंट लिखो कि कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, इन केस मतलब जस्ट जानना तुम लोग के लिए उचित है ना। यू आर रीडिंग साइंस, थोड़ा चीज़ एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन केस से अगर किसी के मन में आएगी, अच्छा कौन सा बैक्टीरिया सर, नाम बता सकते हैं क्या बैक्टीरिया का, है ना, तो नाम लिख लो कौन सा बैक्टीरिया ये काम करता है। तो ये तुम लोग लिख लो कि एसेटोबैक्टर, नाम मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, ACETOBACTER without any space, ACETOBACTER, Acetobacter bacteria convert the alcohol into vinegar in the presence of oxygen. Acetobacter bacteria convert the alcohol into vinegar in the presence of oxygen, है ना, अंडरस्टूड, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था हम लोग का जो, दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, नो द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग द मेडिसिन्स व्हिच आर नोन एज एंटीबायोटिक्स, है ना। द मेडिसिन्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स बिकॉज दे आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द foreign organisms which enter our body, that is why it is known as antibiotic. Anti means against and biotic means the living organisms, means the medicines which are antibiotics, they are generally against the living organism, है ना। So that is why we take it, है ना, because the foreign living organism which has entered in our body in the form of bacteria, so the antibiotic medicine kills the bacteria, है ना, by finding it, by blocking its path, it kills the bacteria.
इट नॉट ओनली किल्स द बैक्टीरिया, इट किल्स आवर सेल्स ऑल्सो, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जिस सेल में रहता है वो उस सेल को पूरा ख़त्म कर दिया जाता है ना, तो हमारा सेल्स भी जो है डिस्ट्रॉय होता है उस मेडिसिन से। लेकिन ठीक है, सेल्स का जो हम लोग का डैमेज होता है वो उतना बड़ा डैमेज नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करती रहती है, तो सेल्स डैमेज हुआ ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया मर गया वो इम्पोर्टेंट है ना। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो दैट इज़ वाई एक्चुअली, है ना, मन में अगर आता कि एंटीबायोटिक नाम के पीछे कारण, तो यही रीज़न है, एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मेडिसिन इज अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लो कुछ एंटीबायोटिक्स, जो कि लिखो राइट नो, से लाइन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, एज इट इज़ लिखो कि सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स, राइट द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, है ना। सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स लिखो, सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया आर मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, तुम लोग लिख लो, जिसको स्पेलिंग आता है लिख सकता है, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए लिख देता हूँ। पेनिसिलिन, नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसा मत समझना कि क्या सर कुछ भी बता रहे हैं, आप तो ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में। दिस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, है ना। 1 2 3 4 वीडियो पॉज करो, लिख लो, ठीक है, चलो। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगर ये तुम लोग से पूछा जाए कि जो पहला एंटीबायोटिक जो कि बनाया गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प लेके, उसका नाम है, तो उसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। ये तुम लोग लिख लो दैट द पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन किससे बनाया गया था सबसे पहले, लिख लो, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड नहीं, पेनिसिलिन was made actually, not discovered. Please cut the discovered word. Penicillin was made by the fungus. Penicillin was made by the fungus Penicillium. Okay. It was made by the fungus Penicillium. Okay. It is made by the fungus Penicillium. Okay. चलो ठीक है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात तुमको पता है, हम तुमको बताए हैं अभी, जस्ट वी आर डिस्कसिंग दैट द एंटीबायोटिक्स आर टेकन व्हेन द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज, दैट एंटीबायोटिक्स आर ओनली हेल्पफुल, दे ओनली वर्क अगेंस्ट the diseases which are caused by bacteria, and they cannot work, or they are not effective against the diseases caused by viruses, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम लोग तभी खाते हैं जब हम लोग को कोई भी डिजीज़ जो हुआ है, दैट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, कोई बैक्टीरिया की वजह से हमको वो डिजीज़ हुआ है, तभी हम लोग एंटीबायोटिक लेंगे, एंड तभी एंटीबायोटिक काम भी करेगा। इट विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन ऐसा होगा, है ना, नहीं तो नहीं है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, ओके। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि याद रखना है तुमको, है ना, कि ये कोई भी वायरसेस, अगर सपोज तुमको कोई वायरल डिजीज़ हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स लेने से काम जो है वो हमारा नहीं चलने वाला है, समझ में आया, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिक्टेट कर दूंगा, तुम लोग चाहो तो उसको लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, बेहतर होगा अगर लिख लोगे तो, है ना, क्योंकि
मैं बोल रहा हूँ तो ज़रूर इम्पोर्टेंट ही होगा। तुम लोग को भी ये बात पता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ कभी भी कुछ भी अननेसेसरी वाला चीज़ नहीं करवाता हूँ तुम लोग, है ना। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो दोस्त हु आर कनेक्टेड विथ मी, है ना, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो दे नो इट वेल, है ना। जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लो, ठीक है। लिखो जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं लिखवाने ये जा रहा हूँ कि सम ऑफ द प्रिकॉशंस जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, तो हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ठीक है। वही मैं तुम लोग को लिखवाऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेना चाहिए, ठीक है। तो लिखो दैट सम ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व। मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, तुम लोग प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो प्ले पॉज करके लिख लेना, ओके। नहीं तो वीडियो का स्पीड कम कर लेना ना, ये भी तो तुम लोग के पास ऑप्शन है, सब ऑप्शन है भाई। लिखो सम ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व इन द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलोज। Number one precaution, लिखो antibiotics should be taken only on the advice of a doctor. Antibiotics should be taken only on the advice of a doctor. Second point, लिखो a person must complete the full course of antibiotic prescribed by the doctor. A person must complete the full course of antibiotics prescribed by the doctor. Third point, antibiotics should not be taken unnecessarily. एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरली। मजाक में एंटीबायोटिक खा लिए 7 दिन, भाई क्या है, इससे नहीं होता है ना। ओके, फोर्थ पॉइंट, द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोज एज एडवाइज बाय द डॉक्टर। द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोज, DOSE डोज, एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, ओके। सो दीज वर सम ऑफ द प्रिकॉशंस, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट वैक्सीन। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वैक्सीन। तुम लोग वैक्सीन के बारे में जाने हो, तुम लोग बचपन में लिए हुए हो वैक्सीन। अगर तुम लोग के आसपास कोई छोटे बच्चे हैं जो जिससे तुम कनेक्टेड हो, तो तुमको पता है उसको वैक्सीन, एक साल का वैक्सीन, एक 3 साल का वैक्सीन, एक 6 साल का वैक्सीन, एक 8 साल का वैक्सीन, एक 10 साल का वैक्सीन होता है। अलग अलग एजेस में हम लोग को वैक्सीन लेना पड़ता है ना। और तुम लोग पोलियो वैक्सीन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। और उसके बाद तुम लोग हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इस तरह के बहुत सारे कुछ डिजीज़ेज हैं जिसका वैक्सीन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन क्यों लिया जाता है ना, क्या रीज़न है वैक्सीन लेने का, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन लेते क्यों हैं, करता क्या है, उसके पहले अगर ये बेहतर होगा कि हम लोग जान लें कि वैक्सीन क्या है ना। व्हाट इज़ वैक्सीन, ये जान लेंगे तो बेहतर होगा। तो लिख लो फटाफट, व्हाट इज़ वैक्सीन। लिखो, अ वैक्सीन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन. A vaccine is a special kind of medicine which provides immunity against a particular disease. Which provides immunity against a particular disease. Understood? Good. मतलब है कि वैक्सीन हम लोग लेते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। जैसे पोलियो का एक वैक्सीन हम लोग लेते हैं ना, हाँ, पोलियो रविवार वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को। तो वो पोलियो डिजीज़ से बचाने के लिए, हेपेटाइटिस से बचाने के लिए हेपेटाइटिस A का एक वैक्सीन आता है ना, टेटनस का वैक्सीन आता है ना, ताकि तुमको कोई भी जो है टेटनस ना हो जाए और उससे जो है कुछ लगा वगा हो तुम लोग को, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जान चला जाता है भाई, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना, जान चला जाता है। तो ये बात है। तो वैक्सीन कैसे काम करता है, क्यों लेते हैं ना। देख, वैक्सीन जैसे तुम लोग चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब होता है ना, तो इन सब का ही वैक्सीन लिया जाता है। टाइफॉइड का वैक्सीन लिया जाता है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन होता है, टेटनस का वैक्सीन होता है, ट्यूबरक्लोसिस TB का वैक्सीन होता है ना, रेबीज़ का वैक्सीन होता है, जिसको कुत्ता वुत्ता काट ले तो एक वैक्सीन का कोर्स होता है, कंप्लीट करवाना पड़ता है ना। डिप्थेरिया का होता है, ठीक है, कफ का वैक्सीन होता है। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसका वैक्सीन हम लोग जो है वो लेते हैं, बचपन में ले चुके हो, 10 साल 12 साल के एज में ले लेते हैं, ठीक है। टेटनस वगैरह भी आजकल जो है मैंडेटरी कर दिया है, पहले नहीं होता था, आजकल मैंडेटरी कर दिया है कि टेटनस का 3 मंथ्स कोर्स कंप्लीट करवाओ भाई, ताकि लाइफ टाइम जो है कभी भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये बात है, पहले मैंडेटरी नहीं था, मैंडेटरी कर दिया टेटनस का भी वैक्सीन, है ना। तो ये बात है। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन अगर हम लोग ले रहे हैं ना, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अगर हम लोग, मतलब हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो उससे हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस जिसका वैक्सीन लिए उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि सर कैसे, मतलब अगर बताते तो अच्छा होता कि मतलब ये काम कैसे करता है ना। चलो फिर बताते क्या होता है। देखो, जो वैक्सीन होता है जो हम लोग लेते हैं एक्चुअली, वो पर्टिकुलर एक डिजीज़, मान लो कि पोलियो हम लेट कर लेते हैं ना बाबू, चल जाए, ठीक है। लेट नहीं करते, मैथ्स थोड़ी है यार, सपोज करते हैं ना।
तो सपोज करते हैं कि पोलियो के बारे में हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। तो पोलियो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलियो डिजीज़ को कॉज करता है, क्या किया जाएगा कि हम लोग जो वैक्सीन लेंगे एक्चुअली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन बहुत वीक, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं जो हम लोग को अटैक करता है, बहुत वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको वीक कर दिया गया है और वो लाइव है ना, अलाइव है, जिंदा है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग की बॉडी में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हम लोग की बॉडी के अंदर जाएगा तो वो अपना असर दिखाएगा, लेकिन चूंकि वो बहुत ही वीक है तो वो उतना अच्छे तरीके से असर नहीं दिखाएगा। इसलिए तुम लोग देखना कि बच्चे जब वैक्सीन वगैरह लेके आते हैं ना, 6 इयर्स वाला, 8 इयर्स वाला, 10 इयर्स वाला, तो 2-3 दिन बहुत बुखार रहता है, किसी किसी को तो वो व्हाट इज़ दैट इन्फेक्शन जैसा जो है ना, बहुत सारे जो रेड जो है वो स्पॉट्स, मैंने क्या बोलते हैं उसको, और दैट रेड स्पॉट्स है ना, दाना जिसको बोलते हैं, रेड कलर का पूरा स्किन में हो जाए, रैशेज निकल जाते हैं, बड़े बड़े रैशेज हो जाते हैं किसी किसी को, है ना। किसी किसी को तो मतलब 3-4 दिन तक एकदम फीवर रहता है, बहुत हाई फीवर रहता है ना। तो सब इफेक्ट होता है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग की बॉडी में इंजेक्ट किया है ना। अब सवाल ये होता है, ये कोई बात हुआ सर, अरे दवाई दे रहा है तो उसमें वैक्सीन में वो तो रोग हम लोग को दे ही दे रहा है, तो वो तो हम लोग को नुकसान कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों दिया जा रहा है? अगर इसके पीछे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें, एक्चुअली ये एकदम आउट ऑफ टॉपिक है ना, मतलब थोड़ा सा जस्ट ऐसे बता रहे हैं, जस्ट बताने के लिए ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, नॉलेज पर्पस। तो होता क्या है, फटाफट आई विल रैप इट अप, ओके। तो होता क्या है कि जब वो जाता है ना अंदर, तो अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वो अपना काम शुरू करता है। मेरे बॉडी में तुमको पता है, हम लोग की बॉडी में है WBC, वाइट ब्लड सेल, हम लोग का सोल्जर उसको अटैक करेगा, है ना, सोल्जर उसको अटैक करेगा। हो सकता है कि अटैक किया सोल्जर, हम लोग का जो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है उसको मार दिया, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी किसी बच्चों के इसमें जिन लोगों को फीवर वगैरह हो जाता है, सबको नहीं होता है। तो जिनको फीवर हुआ इसका मतलब है कि उन लोग का इम्यूनिटी थोड़ा वीक है ना। तो उस समय क्या हुआ कि वो तो ज़्यादा नुकसान पहुँचा नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग का जो WBC होता है ना, बहुत चालाक है भाई। एक बार जिसको देख लिया ना, दुश्मन को पहचान जाता है। पहली बार तो हार गया, लेकिन वो तैयार हो जाएगा, वो अपने आप को तैयार कर लेगा कि हाँ इस बार तो हम लोग हार गए, लेकिन जब भी दूसरी बार ये आया ना, इसको छोड़ेंगे। एकदम यही होता है। बोलते हैं ना जनरली, अपने घरों में भी तुम लोग सुनना कि इसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया है, अच्छा तब इसको नहीं होगा। इसको TB हो गया है एक बार, अच्छा इसको नहीं होगा, है ना। इसको स्मॉल पॉक्स हो गया है, अच्छा तब इसको कभी नहीं होगा, है ना। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत लो है तब हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार हो गया है, वो वायरस अटैक कर लिया, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाया, हार गया, वो अपना असर दिखाया और तुम अफेक्टेड हुए 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी। लेकिन इम्यून सिस्टम बहुत चालाक है, बैठा लेगा दिमाग में, बाबू आओ सेकेंड टाइम तुमको तो बहुत पीटेंगे, है ना। सेकेंड टाइम वो वायरस फिर एंटर करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम एकदम रेडी रहता है। यही है हम लोग का इम्यून सिस्टम, और एकदम फुल फोर्स के साथ उसको पता है कि क्या करने से वो मरेगा, एकदम फोर्स के साथ अटैक करेगा, जो भी फॉरेन मटेरियल है वो ख़त्म। इसलिए हम लोग को वायरसेस जो है वैक्सीन हम लोग को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। जो भी बड़े बड़े डिजीजेज हैं जो कि एकदम डेडली डिजीजेज है ना, तो उसका ये कर दिया जाता है। हम लोग का इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर लिया। अब इन फ्यूचर कभी भी वो आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पावरफुल ही आएगा। तो ये जानता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से निपटाना है ना, एकदम अटैक खत्म कहानी। तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है, इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा तुम लोग, है ना। अच्छा ही बता रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, ख़राब कुछ बताए नहीं है तो ख़राब लगने का सवाल ही कर, है ना, ऑब्वियसली। यस, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, है ना। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में विथ न्यू वीडियो फर्दर, और उसका यूज़फुलनेस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हम लोग का मदद करता है। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसका हार्मफुलनेस डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ है, there's a lot to discuss, है ना। So that's all for today. Hope you have understood everything, each and everything. So keep studying, stay at home, stay safe. Thank you.